We now have a session on auto retail and GST. I guess the most awaited one because everybody wants to know more about GST. And I request Mr. Arvind Mishra, Mr. Satish Upadhyay, and Mr. Jatin Harjai and Mr. Sai Girdhar to please come on the stage. Mr. Arvind Mishra, Consultant Additional Commissioner GST Commercial Taxes Rajasthan, जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें. श्री सतीश उपाध्याय, Special Commissioner GST, and Mr. Jatin Harjai, Partner and Leader GHA Legal. जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें. And I request Mr. Sai Girdhar, Treasurer FADA, to please come forward for the panel discussion. Mr. Sai Girdhar, he is a dealer at Principal Saisha Motors Private Limited, authorized dealer for Skoda in Jaipur with various branch outlets across Rajasthan. And we can have the session. May I now request Mr. Harpal Singh ji. Mr. Harpal Singh ji to please come forward and present bouquet. Mr. Harpal Singh ji, please come forward and present bouquet to Shri Arvind Mishra ji. आपसे गुजारिश है आप आगे आएं और हमारे गेस्ट का स्वागत करें बुके प्रदान करके. और आप सबसे रिक्वेस्ट कि जब स्वागत हो रहा हो तो तालियां बजा दें. Now I request Mr. Aditya Kasliwal to please come forward and present bouquet to Shri Satish Upadhyay ji, Special Commissioner GST. Shri Aditya Kasliwal. I request Shri Sai Girdhar ji to please present bouquet to Mr. Jatin Harjai ji, Partner and Leader GHA Legal. He is practicing advocate and has practiced chartered accountancy for about 15 years. He has authored many articles which have been published in leading tax journals and others. Can we hear it for all our panelists? And over to Sir Shri Sai Girdhar ji for the session. जोरदार तालियां हो जाए सही जी के लिए. Good afternoon, friends. Can I request everyone to please be seated? वो पीछे कुछ लोग खड़े हैं, please आप सबसे request है, please बैठ जाएंगे. GST is an important session. मेरे को पता है lunch के लिए थोड़ा सा हम delay हो रहे हैं, but GST is actually one of the key sessions for us. Can I request everyone to please be seated? Ramanuj, please can you ensure? Thank you. So. One of the primary objective of GST was to remove the cascading effect of taxes. Previously, due to the indirect tax laws, taxpayers could not set off the tax credits of one tax against the others. For example, excise duty paid during manufacturing could not be set off against the VAT payable during the sales. And believe me, when GST came in, because we are in an organized sector, GST is coming in, so we'll get rid of the excise, we'll get rid of the service tax, the VAT issues, and our life would be much easier. So in some terms, up to a certain extent, yes, it has been true, but they've been still, it's been close to now 5 years when GST was implemented. There's still a lot of grey areas which are still not addressed. So probably today we'll take this opportunity to get answers for the queries which are still pending. First of all, I'll request Arvind Mishra ji, the Additional Commissioner GST, to give his open keynotes. Sir, please. Good afternoon, everyone. First, I want to thank you for giving me such opportunity. Actually, now the government is working as an agency, as an facilitator to
promote the things happen in a better way, in a smoother way, in a faster way. Government is not governing now. GST is one step toward that. GST की शुरुआत इसलिए की गई कि जो टैक्सेशन से जो प्रॉब्लम थी, टैक्सेशन का एक मोटो था कि जो कॉमन एक्सपेंसेस है उसके लिए एक कलेक्शन चाहिए, फंड चाहिए जो आप आते हैं, पर उनके कलेक्शन में जो टैक्स पेयर को, जो डीलर था, उनको जो प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को हम एक हद तक सोल्व करें। और काफ़ी हद तक जीएसटी इसमें सक्सेस भी हुआ। और पर्टिकुलरली जो ऑटो सेक्टर है, आई एम वेरी फील प्राउड टू से कि आप लोगों का कंप्लाइंस रेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और आपका शेयर जो है टोटल रेवेन्यू में वो बहुत ज़्यादा है। हमें उस टैक्स के कलेक्शन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें बहुत काम करना पड़ता है। फिर भी कुछ इश्यूज हैं आपके, वो नेचुरली जब एक नया सिस्टम आता है, उस नए सिस्टम में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते हैं कुछ नए इशू आते रहते हैं। काफ़ी चीज़ें सेटल हो गई हैं, कुछ आर इन प्रोसेस। और जैसा चीफ कमिश्नर सर ने बताया, राजस्थान इज़ मेंबर ऑफ बोथ द कमिटीज़ विच फाइन ट्यून द लॉ एंड फाइन ट्यून द रेट्स आल्सो। आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमें दे सकते हैं। हम आपके उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो हम उस काउंसिल के लेवल पे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली करवा सकते हैं रास्ता। कुछ प्रॉब्लम्स जैसे हमें बताया गया कि मल्टीपल कंप्लायंस की प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल चेकिंग की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ लोगों का सिलेक्शन स्क्रूटनी के लिए भी हुआ, उनका सिलेक्शन ऑडिट के लिए होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस तरह की मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंस्पेक्शन की कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिपार्टमेंट की नॉलेज में लाए, हम उनको मर्ज करके एक साथ करवा देंगे। सेकंड इशू जो शुरू हुआ वो था कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाए। राजस्थान में ऐसा इशू आई थिंक ज़्यादा नहीं है कि बाहर के लोग आके हमारे यहाँ से व्हीकल लेके जाएं। अगर ऐसा इशू आता है तो बेसिकली से गुड्स, और गुड्स में बड़ा सिंपल है कि अगर आपने मोमेंट है तो मोमेंट जहाँ डिलीवरी होगी वहाँ है प्लेस ऑफ सप्लाई, और मोमेंट नहीं है तो जहाँ गुड्स थी एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन वो थी। कुछ चीज़ों में लाइक डिस्काउंट्स हैं, आपका फॉरफीचर ऑफ एडवांसेज है। बेसिकली टैक्सेशन जो वेरी करता है वो वेरी करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, जो आपने तय किया उससे तय होता है कि आपका टैक्सेशन कैसा होगा। लाइकवाइज मैं फॉरफीचर और एडवांस के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपने एडवांस ऐसा लिया है कि वो उसने बुक कराया और उसने बुक अगर नहीं कराएंगे तो हम इतना पैसा आपको वापस नहीं देंगे, then there is a corresponding supply to that receipts। और अगर आपने कुछ एडवांस ऐसे जो मुझे बताएगा कि एक बार लमसम रसीट्स दी, थोड़ा पैसा जो बच गया वो वापस नहीं डिस्पर्स हुआ, वो अल्टीमेटली आप वापस उसको क्रेडिट को जो है सेट कर देते हो। उनमें चूंकि कोई कॉरस्पॉन्डिंग सप्लाई नहीं है तो वो आप लोगों का टैक्सेशन के लिए उसका टैक्स नहीं लगता है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें उससे पहले ये चीज़ें हमें डेफिनेटली सोचनी चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है कि कुछ जो इनपुट्स हैं वो क्वालिटी के एश्योरेंस के लिए अवार्डर खुद देता है। अगर आप बिल्डिंग बनाएं तो उसमें आयरन है, सीमेंट्स हैं, वो खुद देता है अवार्डर। बाकी सारी सप्लाई जो है वो कॉन्ट्रैक्टर देता है। इनमें दो केसेस में एपेक्स कोर्ट ने एक ही बात को अलग अलग, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग थे तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में इसी सेम ट्रांजैक्शन को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया। जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ये किया था कि हमारी टोटल जो वैल्यू है उसमें से इनका पैसा जो है जो अवार्डर सप्लाई करेगा वो कम कर दिया जाएगा, उनके लिए वो सप्लाई मानी गई फ्रॉम पार्ट टू द पार्ट ऑफ अवार्डर टू कॉन्ट्रैक्टर।
और जिनों में उस कॉन्ट्रैक्ट में जिनमें ये सप्लाई अलग रखी गई थी उसका कोई चार्ज नहीं था, उनमें वो सप्लाई हेल्ड नहीं की गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस वक्त ये चीज़ें तय होती हैं कि आपका कौन सा पार्ट टैक्सेबल है, कौन सा डिस्काउंट जो है वो प्राइस का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा। आपका अगर ओएम ने आपको डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट के कॉरस्पॉन्डिंग सर्विस क्या है, आप क्या कर रहे हैं, ये सारा जो आपने तय किया उस वक्त कॉन्ट्रैक्टेड तब ये तय होता है कि इसमें टैक्सेस लगेंगे नहीं लगेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि आप नंबर देखेंगे, कॉन्ट्राडक्टरी एडवांस रूलिंग्स हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनिक है कि आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है वो किस स्टेज में मिल रहा है, आपको डिस्काउंट मिल रहा है वो किस बात का मिल रहा है, आपके कोई एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट मिल रहा है, उनके कॉरस्पॉन्डेंटली आपकी लाइबिलिटी क्या है। बेसिक सिस्टम जो थीम है जीएसटी वो है कि सप्लाई अगर हेल्ड होती है दैट मीन्स कि आपने किसी ने कुछ चीज़ दी है गुड्स या सर्विस, उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन लिया है और वो इन कोर्स ऑफ बिजनेस है तो वो टैक्सेबल है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं है। लाइकवाइज एक बड़ा इशू था आपका ट्रांसपोर्टेशन जो रजिस्ट्रेशन चार्जेज हैं, वो चूँकि सुप्रीम एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड भी कर दिया उसमें कि ये पोस्ट सप्लाई है। कुछ इशू थे छोटे जो कुछ गलतियां एक्चुअली बिजनेसमैन चाह के नहीं करता है, इनएडवर्टेंटली हो जाती है। लाइकवाइज जो फ्री गिफ्ट्स हैं या कोई एंसिलरी सर्विसेज हैं जो आप जिनको हैंडलिंग चार्ज बोलते हैं, तो मेरा इसमें रिक्वेस्ट है चूँकि जो कंपोजिट सप्लाई है ये जिसका जो आपके पास कस्टमर आता है वो व्हीकल खरीदने के लिए आता है, वो किसी भी चीज़ रजिस्ट्रेशन कराने आपके पास नहीं आता, तो आपकी जो मेन सप्लाई है वो है सेल ऑफ व्हीकल है। तो चूंकि कंपोजिट सप्लाई में ये मेन सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई है, तो बाकियों के जो टैक्स रेट है जो छोटी चीज़ों के वो वैसे ही लगेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप छोटे छोटे चीज़ों से आप उनको स्ट्रीमलाइन करें। और अगेन आई वांट टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। थैंक यू सर, इतने ट्रांसपेरेंटली और मेरे ख्याल से आपको हमारे इश्यूज पहले से ही उनके बारे में नॉलेज है, तो आपने कुछ तो इश्यूज हमारे शायद इसमें पहले से ही कवर कर लिए। नाउ आई रिक्वेस्ट द पर्सन हु हैज़ द authority on GST to whom we approach wherein we have any issues. So let's have it from Jatin Harjai ji, please. Thank you, sir. Yeah, sure. Can you please connect? First of all, Vinkesh Gulati ji, President FADA, मिश्रा जी, स्पेशल कमिश्नर साहब, साईं जी, निकुंज जी, शाह साहब, गोदा जी, नाउ जूनियर शाह साहब who is leading the battle, है ना। अभी नाम लेने जाऊंगा तो बहुत सारे लोग हैं जिनसे बहुत अच्छे से बातचीत होती रहती है, डिस्कस करते रहते हैं। I must say good afternoon to all of you and thank you FADA to giving me this opportunity so that I can share some of my thoughts in a short span of time, which is approximately 49 minutes from now. I have discussed Sain ji and thought that probably part of the time, maybe 35 to 40 minutes, I'll take on deliberation from my side. Then maybe 5 to 10 minutes we can keep for the questions, maybe open question. Maybe अगर मिश्रा साहब भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो इट विल बी ग्रेट। विद दिस लेट मी स्टार्ट टू द वर्ल्ड ऑफ GST, सो कॉल्ड गुड एंड सिंपल टैक्स, और सम पीपल से गॉड, क्या कहते हैं सर, गॉड सेव फ्रॉम टैक्सेस। ओके,
सो ये अपने अपने एक्सपीरियंस है, किसको जीएसटी अच्छा लग रहा है और हु इज सेइंग इट समथिंग बहुत बड़ा हैरेसमेंट हो गया। ये अपने अपने जिसका क्या एक्सपीरियंस है। Yesterday I was discussing with one gentleman, I won't take the name, उनके लिए तो जरूर वो सेकंड वाला फ्रेज काम करेगा। अरे सर हाथ उठाने की जरूरत नहीं थी। I do not want to identify। निकुंज जी हैं, उनको जरूर अच्छा लगेगा कि हाँ इट्स एक्चुअली गुड एंड सिंपल टैक्स, सारी पहले वाली चीज़ें कम हो गई, मे बी मार्जिन अगर देखा जाए तो जीएसटी की वजह से बढ़ गया, अगर आपने उसको सही तरीके से काम में लिया है तो। लेट मी कम टू वन पॉइंट जो मिश्रा जी ने कहा, बड़ा इंपॉर्टेंट टेक अवे था। अभी आपने एक चीज बोला कि एडवांस रूलिंग कॉन्ट्राडिक्टरी आ जाती है, और एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से उसका एक इंपैक्ट ये होता है कि हम लोगों के मोबाइल्स के ऊपर फ्लड आ जाता है क्वेश्चंस का कि आपने कुछ ऐसा बताया था और ये ऐसा कुछ रिपोर्ट हो रहा है। सो थोड़ा सा मुझे लगता है मैं आपको एक दो जीएसटी के टेक्निकल एस्पेक्ट के ऊपर लेके जाऊं, एक ब्रॉड एक बात करते हैं। प्लीज हियर लर्नेड जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट, कैन यू हियर इट? यू कांट, जस्ट take a chance, but to understand your policies and your intricate, someone will say that Mr. Pardiwala, this is Thakur, would you like to take a trip to the moon? We would take a chance, but to understand your policies and your intricacies of this tax, oh God, we folded hands. We say that it's beyond our capacity to understand. So this is a comment of a very very learned judge of India, that it's easy to go to moon than to understand this GST. He is actually at the tax bench, so he is handling on a daily basis these type of GST issues, so he can say so. मैं सिर्फ आप लोगों को एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि जीएसटी जब हम देखें, सुने, क्वेश्चन रेज करें, या फिर जब आप क्वेश्चन रेज करें और मैं आंसर दे रहा हूं, तो यू शुड नो कि मेरा आंसर कहां से आ रहा है और मिश्रा जी का आंसर कहां से आ रहा है। So let me tell you that basics, that's very important for all of us to know. First of all, what is law? बेसिक यहां से स्टार्ट होता है, लॉ है क्या? क्या वो व्हाट्सएप पर जो न्यूज आ रही है या क्या वो AAR का प्रोनाउंसमेंट आ रहा है, क्या वो लॉ है? एब्सोल्युटली नो। लॉ इज ओनली दैट डॉक्यूमेंट विच इज पास बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी लॉ नहीं। जो हमारे एक्ट पास किए गए हैं या तो पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से, दैट इज एन एक्ट, वो पेरेंट लॉ है किसी भी चीज के लिए। उसी के अंडर में कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है, या नोटिफिकेशन आते हैं जो कि गवर्नमेंट लेके आती है, दैट इज कॉल्ड एज सबऑर्डिनेट लॉ। दैट मींस जब तक वो अपने पेरेंट से क्लैश नहीं कर रहा तब तक वो वैलिड है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट नेवर स्पीक्स फॉर देमसेल्फ। वो कभी खुद नहीं बताते कि हमारी क्या इंटेंशन थी। दिस इज व्हाट रूल ऑफ लॉ, इट इज टू बी इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स। यानी पार्लियामेंट कभी ये नहीं बताएगी कि हमने क्या सोच के किया था या हमने क्या किया, इसका जो हमने लिखा है उसका क्या मतलब। पार्लियामेंट विल पास द लॉ एंड इट इज टू बी इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स कि इस जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। अगर फिर पार्लियामेंट को लगता है बाद में कि ये कोर्ट ने कुछ गलत इंटरप्रेट कर लिया, so it is for the parliament again to amend the law. Don't explain, parliament is not supposed to explain their intention. So precisely the law is act, rules, notifications and judgments of the court. ये जब भी आते हैं तो ये हम कहते हैं this is law of the land. Simultaneously बहुत so called AR, advance rulings, जिसका मिश्रा जी ने जिक्र किया था। Advance ruling is law for the person who sought it. That's it. नो मोर नो लेस। जिस पर्सन ने वो अप्लाई किया है, एडवांस रूलिंग ली है, अच्छी आती है बुरी आती है, वो उसके लिए लॉ है, उसके लिए बाइंडिंग है। किसी और के लिए उसका कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं। इट्स जस्ट लाइक कि हम जयपुर में बैठे हैं, तमिलनाडु में किसी आईटीओ ने क्या असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, दैट्स इट, इससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं। सो अथॉरिटेटिव वैल्यू बिल्कुल भी नहीं। नाउ लेट मी टेल यू हाउ गवर्नमेंट ऑफिसर्स अंडरस्टैंड द लॉ। अभी मैंने आपको बताया कि लॉ क्या है,
द सेकेंड लिम्ब इज हाउ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, दैट मीन्स जिनसे हमारा पाला पड़ने वाला है, वो लॉ को कैसे समझते हैं. सबसे पहले सर्कुलर जो कि बोर्ड के द्वारा इश्यू किया जाता है. बहुत को आप देखेंगे, बहुत कॉमनली कई बार हुआ, हम लोगों ने स्ट्रगल भी किया, वेंकटेश जी ने बहुत मेहनत किया, 105 नंबर सर्कुलर आया था उसको विड्रॉ कराने के लिए, एंड फाइनली ही सक्सीडेड. होल ऑफ द टीम सक्सीडेड. सर्कुलर इज व्हाट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट कि लॉ क्या है. प्लीज माइंड, सर्कुलर इज नेवर द लॉ. सुप्रीम कोर्ट in Bengal iron case has categorically said circular is not the law, it is merely an understanding of the officers of some of the government officers, that's it. We cannot consider. And अगर आप किसी भी एडजुडिकेशन लेवल को छोड़ देंगे, जैसे कि आज ही मैं जहां हाई कोर्ट में था, वहां पर जब सर्कुलर दिखाया जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम जजेस से साइड में रखो सर्कुलर को, दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग, कानून बताइए. सो सर्कुलर इज नेवर द लॉ, बट please mind, government officers are supposed to follow the circular. It's just like मेरे ऑफिस में या आपकी डीलरशिप में आपने अपने सेल्स वाले को क्या बोल दिया कि ये गाड़ी ऐसे बेचनी है. मे भी वेंकटेश जी ने कहा जो कस्टमर आएगा उसको बोलनी है ये 20 का एवरेज देती है. बेशक कंपनी ने बोल रखा है नहीं बोल रखा 20 का देती है, तो सेल्समैन हैज टू से कि वो 20 का एवरेज देती है. अब वो देगी 20 का, नहीं देगी, वो कस्टमर क्या क्लेम करता है, कौन उससे भिड़ने वाला है, वो बात की बात है. बट कस्टमर हैज टू, सेल्समैन हैज टू से कि 20 का एवरेज देना. क्यों? क्योंकि वेंकटेश जी ने बोला है, मेरे बॉस ने बोला. इट्स जस्ट लाइक दैट. सर्कुलर इज अ डॉक्यूमेंट जो कि इश्यू किया है गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने. ऑन द सेम पैरिटी, प्रेस रिलीज, गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शन, एफएक्यू, एआर, जो मर्जी आप बोलिए. एआर इज अगेन इन दिस फुटिंग कि वो किसी और के केस में रूलिंग है, आपके केस में नहीं. ट्रेड नोटिसेस, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिसर्स, कि पहले जो वैट के ऑफिसर्स हैं उनका एक्सपीरियंस सेल्स टैक्स रिजिम में क्या है, जो एक्साइज या सर्विस टैक्स को हैंडल करने वाले लोग हैं उनका उस रिजिम का क्या एक्सपीरियंस है. ये हमारे आज के डिसीजन को बहुत अफेक्ट करता है. और अनडाउटेबली आई कैन से एक रेवेन्यू बायस जरूर होता है. मैं साईं गिरधर जी को कह रहा था, आपने जिनको ऑफिसर्स को बुलाया है, and he'll vouch it, मैंने आपने ऑफिसर्स ऐसे बुलाए हैं जो कि एक्चुअली जिनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. बट नॉर्मली जब आप एडजुडिकेशन पे लेवल पर जाएंगे, दिस इज ट्रूथ, वी ऑन अ रेगुलर बेसिस वी फेस इट. उनका ये होता नहीं जी ये तो पैसा आ रहा है सरकार के पास, वही व्यू लेते. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आप लोगों से शेयर की, प्लीज जब भी आप क्वेश्चन पूछें, या अभी इसी सेशन में लास्ट में अगर आप क्वेश्चन पूछने वाले हैं, तो प्लीज डोंट आस्क मी रेफरिंग अ क्वेश्चन, रेफरिंग अ एआर, बिकॉज एआर इज नॉट द लॉ ऑफ द लैंड. अगर आप, मैं आंसर जरूर करूंगा लेकिन विदाउट रेफरिंग टू एआर, विद द कोर लॉ, कि कोर लॉ क्या कहता है और उसका रेस्पॉन्स कहां से निकल के आ रहा है. बस लास्ट छोटी सी बात, कई बार ऐसा चीज हो सकती है कि जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे एक्ट हो, चाहे रूल्स हो, क्वाइट पॉसिबल उसमें भी गलती हो सकती है. क्या ये लॉ सही है, क्या ये रूल सही है? इन दैट केस ओनली एंड ओनली द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज द कॉम्पिटेंट जो ये डिसाइड करेगी लॉ इज करेक्ट और नॉट. विद दिस बैकग्राउंड कुछ आपके सामने मैंने इश्यूज रखे हैं. लेट अस सी इसमें से कितने हम पूरे कर पाते हैं. लेट मी स्टार्ट विद द वन ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि इश्यूज आज की डेट में मुझे लगता है काफी लोग फेस कर रहे हैं. एट टाइम्स व्हाट हैपन, वी सेल our vehicles along with some of the gift items, so called gift item or FOC item, maybe sales promotion item. अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं. क्वेश्चन है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट इन गिफ्ट आइटम्स या फिर सो कॉल्ड सेल्स प्रमोशन आइटम्स के ऊपर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा. दिस इज व्हाट द सिंपल क्वेश्चन. I don't have any hitch in saying there are contrary advance rulings, so I won't refer any ruling. Law क्या कहता है उसकी बात करते हैं. Law is very very simple. It says section 16 subsection 1 says if you are paying GST on any goods or services which are being utilized for the purposes of the business, in that case credit is eligible. There are negative list, यानी कि
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये देखना है क्या क्रेडिट मिलता है. यस, ब्रॉडर बास्केट में हम आते हैं. इफ देयर इज नथिंग नेगेटिव, इन दैट केस क्रेडिट इज थ्रू. So precisely one basket which says if something is being used for the purposes of the business, and business is a very very vastly defined in section 2 subsection 17. So first test is passed in case of all the gift items, because जो gift item आप ले रहे हैं या sales promotion item ले रहे हैं, that is for the business development, that's it. Even the law uses the term for furtherance of the business, in the course or furtherance of the business. Now is there any negative list or a negative entry which hits this type of credits? Probably there is one entry which has been used by the couple of officers in denying this credit. This is the entry. It says, whatever we have stated in 16(1), credit will not be available if it is in respect of goods lost, stolen, destroyed, written off, or disposed of by way of gift or free sample. Now the claim is it has been given free. मे भी कई बार आपने जो एडवर्टाइजमेंट भी जाता है उसमें भी आता है इसके साथ हम फ्री दे देंगे. इसका आंसर निकालने के लिए लेट मी डिवाइड द पिक्चर इन 2 टाइप ऑफ केसेस. एक केस तो ये हो सकता है कि आपने व्हीकल सेल किया और व्हीकल सेल के साथ में कहा आपको टीवी, फ्रिज और समथिंग समथिंग वी विल गिव यू इन फ्री. This is the one type of case. Now the law uses the term free gift. शाह साहब ने ऐसी स्कीम निकाली कि एक वो LCD फ्री देंगे अगर एक गाड़ी आप फ्री में लोगे. मैं शाह साहब के पास पहुंच गया, मैं साहब वो टीवी तो फ्री है ना, वो मुझे दे दो. टीवी फ्री है, वो वाला मुझे दे दो, गाड़ी किसी और को दे दो. सर ऐसा करेंगे आप, मुझे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे. तो ये फ्री नहीं, ये फ्री नहीं. इट इज विद द कंडीशन दैट आई विल हैव टू बाय द कार फर्स्ट. अगर कार नहीं लोगे तो कुछ भी, ये आपका फ्री नहीं है. फ्री का मतलब होता है विदाउट एनी काउंटर ऑब्लिगेशन. देयर शुड नॉट बी एनी काउंटर ऑब्लिगेशन टू डू एनीथिंग. इन दैट केस ओनली इट इज फ्री, अदरवाइज इट इज नॉट फ्री. इनफैक्ट ये इतना सिंपल सा चीज है, फिर भी आई वंडर कि क्यों केसेस बना रहे हैं कुछ लोग. इनफैक्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लॉ क्या होता है, एक्ट, रूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उससे आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया इसको, एंड यू ऑल विल एग्री विद इट. आई एम श्योर कि इट इज नॉट फ्री. सो जो आपने टीवी परचेज किया था, LCD परचेज किया था देने के लिए, क्रेडिट शुड बी अलाउड, क्रेडिट वुड हैव बीन अलाउड. बट जब कुछ नेगेटिव केसेस बने, ऑफिसर्स ने बनाए, तो गवर्नमेंट खुद सामने आई और एक सर्कुलर इश्यू किया, सर्कुलर नंबर 92/2019, जिसमें गवर्नमेंट ने खुद ने यह समझाया कि जब भी ऐसी कोई सप्लाईज होती हैं जिसमें बाय वन गेट अनदर फ्री और बाय वन गेट टू समथिंग लाइक काइंड ऑफ थिंग, वो आई थिंक एक ब्रांड होता था कूटोन्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत पहले उसने बड़ा ये स्टार्ट किया था, बाय वन गेट टू फ्री और समथिंग समथिंग. सो उन्होंने कहा ये कोई भी स्कीम है जिसमें यू आर बाइंग समथिंग एंड यू आर गेटिंग सम आइटम एडिशनली कॉम्प्लीमेंट्री और मे बी फ्री, in that case essentially it is not a free. ये सर्कुलर में CBIC ने खुद ने बोला. तो this is not free, and if you refer this slide at the bottom, their government itself has clarified ITC shall be eligible. There is no doubt that input tax credit shall not be eligible. CBIC itself has said. It is also clarified that ITC shall be available to the supplier for input services and capital goods used in relation to supply of goods or services or both, as a part of such offer. Which offer? Buy one, get something else. So tomorrow if you get any kind of notices on this, please show this circular only. And circular is binding on the officers as well. Law है या नहीं है, लेकिन officers के ऊपर binding है. So no one can deny this circular कि आपको credit नहीं मिलेगा. Now let me come to the another kind of gifts. Now what happened? दिवाली आने वाली है. अभी दिवाली आने वाली है तो मेरे prospective customer को और मे बी RTO, मे बी different offices, not to name it, काफ़ी जगह काफ़ी कुछ गिफ्ट्स आ रहे हैं. Now in my humble opinion, this is actually a purely a free gift, whereas no counter obligation is there. किसी ने आपको ये नहीं कहा कि ये मेरे पास भेजना तब मैं आपका ये काम करूँ.
एटलीस्ट ऑन रिकॉर्डिंग. So it has to be treated as a free gift, and in this particular scenario, in my humble opinion, the credit has to be reversed. अगर ले लिया है तो, और अगर नहीं, अगर आने वाले टाइम की बात है तो प्लीज मेरी एडवाइस ये होगी ऐसे क्रेडिट्स को अवॉइड कीजिएगा, नहीं लीजिएगा. नाउ लेट मी कम टू द अनदर इशू जो कि आज की डेट में डीलर्स के लिए बहुत कॉमनली आ रहा है. एक ई-वे बिल का इशू है. ये डीलर्स के साथ बड़ा मजेदार इशू है. कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे थे, जो लोग इनफैक्ट दिमाग में क्या वो आते हैं, आप लोगों से फीडबैक कहीं से आया कि जब पूछते हैं कि क्या ई-वे बिल की जरूरत है जब हम वेयर हाउस से शोरूम भेज रहे हैं या शोरूम से वेयर हाउस भेज रहे हैं. इट मे बी विद इन सिटी, इट मे बी इंटर सिटी. कोई एग्जीबिशन लगने वाली है, उस एग्जीबिशन में व्हीकल जा रहा है, क्या ई-वे बिल की जरूरत है? कस्टमर को शोकेस कराने जा रहे हैं, क्या ई-वे बिल की जरूरत है? ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, क्या इनमें ई-वे बिल की जरूरत है? और मे बी अ वेरी वेरी कॉमन केस, मैंने गाड़ी सेल की, बायर के पास GSTIN है, क्या मुझे ई-वे बिल बनाना है? मैं ज्यादातर वो इशू ले रहा हूं जिनके लिए डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने कहीं ना कुछ केसेस बनाए हैं, चाहे वो आपका सेल्स वाला था या ये जो अभी ई-वे बिल की बात कर रहे हैं, आने वाले जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं. क्योंकि अगर आप में से कोई इसको इशू आ चुका है आपके पास, सो यू कैन नोट डाउन द सॉल्यूशन या फिर आंसर. नहीं तो एक्सपेक्ट कीजिए कि ऐसे इश्यूज आपके पास आने वाले हैं. और मैं डरा नहीं रहा हूं, ये वास्तविकता है. 2020 में जब दिल्ली में अपना कॉन्फ्रेंस हुआ था सर, तो मैंने इंटरेस्ट के नोटिसेस के लिए बोला था उसमें कि इंटरेस्ट के नोटिसेस किसी के पास आए, किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया था, उसके विद इन 1 मंथ सारे नोटिसेस आए थे. सी ई-वे बिल के लिए को लेके झगड़ा क्या है, उसका मैं पहले आपको बोन ऑफ कंटेंशन बताता हूं, कहां इशू क्या है. देयर इज अ रूल 138. उसकी जो वर्डिंग है उसने अपने आप में कंफ्यूजन पैदा की है. क्यों किया है वो बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर है. It says every registered person who causes movement of goods of consignment value exceeding this in relation to a supply or lease for reasons other than supply. Now what is goods? Section 2 subsection 52 says movable property of all kind is a goods. यानी आपका जो व्हीकल है, जो आपके गुड्स है, वो तो गुड्स है ही. उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई मशीनरी है which moves from one place to another, आपका कोई इक्विपमेंट है, आपका कोई फर्नीचर है which moves from one place to another, each and everything is a goods in the GST law. करेक्ट है ना सर? गुड्स तो सारी चीजें हैं. एंड दिस रूल सेज व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जब भी गुड्स का मूवमेंट हो रहा है आपको ई-वे बिल बनाना है. इस रीडिंग को देखते हुए कई जगह ऐसे केसेस बने जिसमें क्या किया गया कि मैंने कार बेची किसी बायर को जिसके पास GSTIN है, तो ऑब्वियसली गाड़ी चल के जाएगी दूसरी जगह पर. ऐसे केसेस के ऊपर ई-वे बिल के पेनल्टी लगाई गई. ई-वे बिल आपने जनरेट नहीं किया. एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में गाड़ी जा रही है, उनके लिए पेनल्टी लगाई और ह्यूज अमाउंट की पेनल्टी है, छोटी पेनल्टीज नहीं है. अभी दिमाग में ये आता है कि वो ऑफिसर सोच क्या रहे थे कि ई-वे बिल चाहिए, रूल ये है. तो उन्होंने बहुत ही लिटरल सेंस में पढ़ा, जिसने भी पढ़ा इसको तरीके से पढ़ा कि पर्सन इन चार्ज, कन्वेंस एंड गुड्स, these 3 items has to be there. If these are not there, then rule 138 doesn't operate in my humble opinion. ये बात रही अगर आपके पास किसी ने ई-वे बिल इशू नहीं किया है किसी ट्रांजैक्शंस के लिए और आपका कोई केस बनता है. अब कई बार बात ये आती है कि हम क्या इस तरीके से फॉलो करें. तो मेरी नॉर्मली जो सजेशन देने का या जो मैं चाहता हूं इंडस्ट्री जिस तरीके से करे, लेस लिटिगेशन होना चाहिए जितना पॉसिबल हो सके. तो मैंने 2 पार्ट्स में प्रिसाइजली डिवाइड किया था, व्हाट इज द लॉ एंड हाउ ऑफिसर्स अंडरस्टैंड द लॉ. अगर आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान नहीं हो रहा है तो आई ऑलवेज एडवाइज कि जो ऑफिसर्स जिस तरीके के लॉ को समझ रहे हैं, बेटर टू कंप्लाई विद दैट. सो अगर ई-वे बिल इश्यू करना है हमको, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. अगर ई-वे बिल इश्यू करना है किसी भी तरीके से तो कॉस्ट तो कुछ आ नहीं रही, तो मे बी यू कैन टेक अप
यू कैन इंस्ट्रक्ट योर स्टाफ कि हाँ भाई बना लो, फर्क क्या पड़ने वाला है। बट इन केस अगर कोई केस बनता है तो मैंने आपको लीगल पोजीशन जो बताया वो यही बताया। इन माय हम्बल ओपिनियन देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट। अगर कल को कोई भी आपके पास केस बनता है या कुछ भी होता है इन दोस केसेस। नाउ लेट मी कम टू द अनदर एस्पेक्ट ऑफ कि ये एक बहुत कॉमन क्वेरी इन दिनों में आ रही है कि हमारे पास क्रेडिट बैलेंसेज रह जाते हैं। When we close our books of account, there are some credit balances of so many customers which are lying in the books of accounts, we are writing it off. So when we are writing it off, that credit balance, whether GST is to be paid or not, this is a very common question which is coming nowadays. Again, law की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, what the law is. Law says if there is any supply of goods or services, in that case GST will be applicable. Services is anything other than goods is a service. Now important aspect is GST is on supply of service, not on service. GST is on supply of goods or supply of service. अभी एक बड़ा important लीगल प्रोविजन है जो कि रेफर किया जाता है बहुत बार। जब आप एडवांस रूलिंग देखेंगे तो दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन लीगल प्रोविजन। एंट्री नंबर 5 क्लॉज ई ऑफ शेड्यूल सेकंड, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर बॉटम में है। अगर आप लिटरली इसको रीड करेंगे तो इट लुक्स लाइक कि ये चीजें हैं, इनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। प्लीज माइंड माय वर्ड्स। व्हाट आई सेड इज सर्विसेज इज एनीथिंग अदर देन द गुड्स, बट टैक्स इज नॉट ऑन सर्विस, टैक्स इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। So it has to be a supply of service for getting something taxed or supply of goods. And this schedule says that these shall be treated as a supply of service. One of the item is agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act. यानी आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप अग्री कर रहे हो कि मैं कुछ नहीं करूंगा, इस बात के लिए आपको पैसा मिल रहा है, it will be treated as supply of services. Please mind, this is very important thing. अभी मैं बहुत ज्यादा हिस्ट्री और डीप में नहीं ले जा रहा हूं कि ऐसा क्यों था, बट प्लीज माइंड इट इज शेड्यूल 2. There was some error in drafting of the law and lawmakers rectified it. Lawmakers rectified it by way of a notification dated 1st February 2019 and with retrospective effect from 1st July 2017. यानी जिस दिन से GST आया उस दिन से ये कानून बदल चुका है। वो कैसे बदला है मैं आपको बता रहा हूं। आपने एक शेड्यूल मैंने आपको दिखाया जिसमें एक एंट्री लिखी हुई थी कि आपको जो पैसा मिल रहा है फॉर टॉलरेटिंग एन एक्ट मिल रहा है, देन दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। वो सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे था, आपके सामने एक शेड्यूल है विच डिफाइंस स्कोप ऑफ सप्लाई. Scope of supply was there in section 7. There were 4 clauses A, B, C, D. If you refer to clause D, it used to say कि शेड्यूल 2 में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको सप्लाई मानेंगे. शेड्यूल 2 में जो भी कुछ लिखा है उसको सप्लाई मानेंगे. प्लीज माइंड दिस अमेंडमेंट इज देयर नाउ. देयर इज नो मोर क्लॉज डी विद इफेक्ट फ्रॉम 1st जुलाई 2017. यानी जिस दिन से जीएसटी लगा था उस दिन से ये एंट्री डिलीट हो चुकी है. और शेड्यूल 2 पढ़ने के लिए एक नया क्लॉज आया 1A which says first of all you have to decide from the other aspect whether something is supply or not. If it is supply, then only you will have to go to schedule 2 to check whether it is a supply of goods or a supply of service. No, you cannot directly refer to schedule 2. That means first of all you have to identify something is a supply or not. If something is not supply, you are not supposed to go to schedule 2. And if you go through the advance ruling in a lighter manner, in some of my friends community, we always say it's not advance ruling, it's a adverse ruling. So if you go to that AR, most of the time the only reason is this entry कि वो 5E entry है, उसमें लिखा हुआ है tolerance of an act, without even referring to कि वो तो law change हो गया 1 जुलाई 2017 से. You will find जहां पर भी सर्विसेज को टैक्स करने की बात की है आपको ज्यादातर में ये एंट्री मिलेगी, जबकि लॉ इज कंप्लीटली चेंज फ्रॉम द डे 1. अभी मैं राइट ऑफ के ऊपर आता हूं. राइट ऑफ को मैंने लेके 3 पार्ट में डिवाइड किया है. सिर्फ ये क्वेश्चन का कि भाई मेरे पास क्रेडिट बैलेंस था एंड हैव रिटर्न ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आंसर नहीं मिलेगा. उसके लिए आपको फैक्ट्स में जाना पड़ेगा थोड़ा सा डीप में कि वो राइट ऑफ क्यों किया है, वो किस बात का क्रेडिट बैलेंस था. I am taking as a case 1. Case
केस वन ये है कि आपको मिस्टर ए ने एक कार बुक कराया 10,000 रुपीज का. प्लीज लेट मी टेल यू, जितने भी फैक्ट्स बता रहा हूं ये आप लोगों में से कहीं ना कहीं से मेरे पास आए. ये वही केसेस डिस्कस कर रहा हूं. कार बुक कराया किसी ने 10,000 का, एंड आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड. भगवान करे ऐसे क्लाइंट सबको मिले. टैक्स देने में भी कोई दिक्कत नहीं है. द क्वेश्चन इज, क्या इसके ऊपर जीएसटी देना है? What happens as per our own practice most of the time in case of listed company, when 1 year tenure is over, otherwise after 3 years तो हर कोई write off कर देता है because of limitation law. क्योंकि 3 साल के बाद जो सामने वाले का राइट खत्म हो जाता है स्टैट्यूटरी मांगने का. आई एम नॉट सेइंग कि आपको देना नहीं है वो पैसा. आई एम नॉट सेइंग कि भाई आपको देना नहीं है. मॉरली यू आर रिस्पॉन्सिबल कि भाई मैंने आपसे पैसा लिया, आपको सर्व नहीं किया, तो 3 साल बाद भी आप आओगे, हाँ भाई आपका ये बनता था, वापस देना, ही गाड़ी बुक कराई थी, समथिंग लाइक दिस. बट अगर मैं लीगली बात करूं तो द मोमेंट 3 years आर ओवर और उसने बीच में आपसे वापस नहीं मांगा, देन ही डजंट हैव अ राइट टू एनफोर्स दिस थ्रू द कोर्ट. वो वापस नहीं मांग सकता लीगली, आपको स्यू नहीं कर सकता आफ्टर 3 years. इसलिए 3 साल के बाद नॉर्मली राइट ऑफ कर देते हैं बैलेंस शीट्स में. क्वेश्चन ये है कि जब मैंने बैलेंस शीट में राइट ऑफ कर दिया तो क्या इसके ऊपर जीएसटी लगाना है? व्हाट हैपन, थोड़ा सा जस्ट वो अकाउंटिंग में जाना पड़ेगा. व्हाट हैपेंस द मोमेंट आई राइट इट ऑफ, वो हमारे पीएनएल में चले जाता है. पीएनएल यानी कि वो मुझे इनकम दिखता है कि ये 10,000 रुपये मेरी इनकम हो गई. एंड द वे अथॉरिटीज कीप ट्रैक ऑफ टैक्सेस, वो सीधा जाते हैं पीएनएल में इनकम क्या क्या है. सबसे पहला काम स्टार्टिंग यहीं से होती है. ऑब्वियसली इफ आई एम एन ऑडिटर आई विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम देयर कि भाई पीएनएल में इनकम क्या क्या है, इन सब के ऊपर टैक्स आ गया या नहीं आ गया. द मोमेंट दीज टाइप ऑफ एंट्रीज आर देयर, द डिमांड इज बीइंग जनरेटेड कि भाई ये क्रेडिट एंट्री थी, इनकम थी और इसके ऊपर टैक्स नहीं दिया. प्लीज माइंड, दिस इज नॉट अ इनकम टैक्स. It is not an income tax, it is a goods and services tax. Meaning thereby, the tax will have to be there, tax will be there only when there is a supply of goods or supply of services. If these kind of elements are not there, no GST. Now the question is, where is supply? क्या supply किया? The moment you just made an accounting entry, क्या इसकी वजह से supply हो गया? My humble submission is no. मेरे हिसाब से वो कोई सप्लाई नहीं हुआ, बिल्कुल कभी कोई सप्लाई नहीं हुआ, और उसके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है. इट्स प्योरली अ यूनिलैटरल एक्ट कि आपने अपनी बुक्स में उसको बंद कर दिया. नाउ लेट अस कम टू द अनदर एग्जांपल. नाउ व्हाट हैपेंड, दूसरा केस लिया कि ऐसा नहीं है, डिसअपियर होने वाला केस नहीं है. एक आदमी ने जेन्युइनली एक कार बुक कराया, उसका माइंड चेंज हो गया. पहले उसको BMW बुक कराया था, नाउ उसका मन आया नहीं जी आई विल गो टू TNT मोटर्स. अभी वो BMW वाला कैंसिल कराया. तो सांगी जी बैठे होंगे यहाँ पर, तो उन्होंने कंडीशन लगाई होगी कि भाई अगर आपने बुकिंग कैंसिल कराया तो आई चार्ज 20,000 रुपीज, समथिंग लाइक दिस. वो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है. इफ समवन कैंसिल्स दिस कॉन्ट्रैक्ट देन आपने 1 लाख रुपए की बुकिंग दी है, 20,000 रुपये आई चार्ज, समथिंग लाइक दिस. क्वेश्चन इज, क्या ये 20,000 रुपए जो चार्ज कर रहे हैं इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? 80,000 आई एम गोइंग टू रिटर्न, 20,000 में अपने पास पॉकेट कर रहा हूं. क्वेश्चन ये है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं? आंसर लॉ में वहीं से आएगा. क्या यहां पर कोई सप्लाई है? क्या यहां पर किसी भी तरीके का कोई सप्लाई है? अगर आप लॉ के वर्डिंग्स देखिए जो मैंने दिखाया था, इफ यू विल आस्क मिश्रा साहब और एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर्स, सीधा एक बात आएगी, नहीं पैसा चार्ज किया है. किस बात का किया है? यू हैव टॉलरेटेड एन एक्ट ऑफ cancellation of the vehicle. You have tolerated an act of cancellation of the vehicle, meaning thereby they are referring to entry 5 clause E of schedule 2, which legally no one can refer. Which legally no one can refer directly. First of all, you will have to tell me that what is supply. Which is not there the case. Which is not the case. There is no supply. कोई किसी भी तरीके का सप्लाई नहीं हुआ. व्हाट दिस अमाउंट इज नथिंग बट अ डैमेज और अ कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आपने मेरे से कार बुक कराई थी, आपके कहने से मैंने कार मंगाई, मैंने ऑर्डर दिया आगे, अब वो तो मेरे यहाँ इन्वेंट्री में पड़ी रह जाएगी. हो सकता है उस कार का कोई बायर नहीं आएगा. वट एवर इज द लॉजिक, बट आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो कॉन्ट्रैक्ट को आप ब्रीच कर रहे हो, इसलिए यू आर गोइंग टू इंडेमनिफाई. अभी इसके ऊपर बहुत अच्छा
जुरिस्प्रूडेंस ऑलरेडी डेवलप्ड है और एआर बहुत सारी आ रखी है। सो मैं दोनों आपको बताता हूं दोनों में क्या कहानी है क्या नहीं है। जो सो कॉल्ड एडवांस रूलिंग और एडवर्स रूलिंग है वो एक लाइन में एक बात कहते हैं, जितने भी ऐसा पैसा मिलने वाला है दिस इज अ लिक्विडेटेड डैमेजेस और इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। एक साइड से सेम स्टोरी आ गई, एडवांस रूलिंग में कोई डिफरेंस नहीं। अब बात करते हैं कोर लॉ की कि लॉ क्या है। एक मैं और एडवांस थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड देता हूं कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने एक वर्ड यूज किया, ये हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि जब भी अगर कोई देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट और अगर उसको कोई भी एक पार्टी ब्रीच कर रही है तो अदर पार्टी हैज अ राइट टू गेट इंडेमनिफाइड, यानी उसको जितना भी नुकसान हुआ है वो कोर्ट के थ्रू उसको जाके उस नुकसान को रिकवर कर सकता है। There are two specific provisions, section 73, 74 in the Contract Act, which deals with the computation of these kind of compensations, damages or indemnity amount, whatever you say. Law says अगर आपने कुछ contract में नहीं लिखा हुआ है, in that case the other person यानी sufferer will get the amount equivalent to the damages. उसको actually financial loss कितना हुआ है उतना पैसा उसको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम काउंट करने जाएं तो वो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, मैंने BMW एक बुक किया, प्रोबेबली वो मेरे पास कितने टाइम रहेगा, हम एक एस्टिमेट लगाएंगे 2 महीने 3 महीने, एक 50 लाख की गाड़ी मेरे पास रह जाएगी तो उसकी क्या कॉस्ट हुई, इतना वो रिकवर कर सकता है इफ इट इज नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट। 74 सेज कि आप दोनों पार्टी मिलके उसमें क्वांटिफाई भी कर सकते हैं इसको जो लीगल वर्ड में 2 वर्ड यूज होते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी अमाउंट आइडेंटिफाई कर रखा है देन इट इज कॉल्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस। इफ इट इज नॉट आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट इन दैट केस इट इज अ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एंड प्लीज माइंड सुप्रीम कोर्ट इज क्लियर ऑन दिस, इंडियन लॉ में whether it is a liquidated damages or unliquidated damages it doesn't make any difference, only a quantum is being decided। उससे होता क्या है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि इतना अमाउंट चार्ज करना है कैंसिलेशन के ऊपर तो वो हैसल खत्म हो गई, वो कंप्यूट करने का कि वो कितना अमाउंट निकलने वाला था, अदरवाइज तो एस्टिमेट करते रहो उस चीज को। ये 2 लोगों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अगर कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेगा तो ये अमाउंट देना, दैट मींस दिस इज अ कंपनसेशन अमाउंट। सो दिस मैटर जो मैं इस एंट्री की बात कर रहा हूं आपको, टॉलरेंस ऑफ एन एक्ट, ये कई बार और बहुत सारे केसेस में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडीशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसिडरेशन टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि मैंने BMW बुक कराया, लेट अस अज्यूम 50 लाख रुपए की कार थी, तो वो 50 लाख रुपए जब मैं कार बेचूंगा तो उसका कंसिडरेशन इज 50,000 रुपीज, बट मुझे कार बेचनी है, इतने टाइम में लाके देनी है, और अगर मैंने सामने वाले ने बुकिंग कैंसिल कर दी तो मैं इतने पैसे लूंगा। दिस इज अ कंडीशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ कंसिडरेशन जो मुझे मिल रहा है। एंड फॉर अ कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट से दैट देयर इज अ सर्विस। अभी ये मैंने बात की आपको सर्विस टैक्स लॉ में, फॉर्चुनेटली वी हैव अ डायरेक्ट जजमेंट ऑन दिस फ्रॉम द बॉम्बे हाई कोर्ट। भाई मनुभाई ट्रस्ट में कुछ इसी तरीके का मैटर डील हुआ लिक्विडेटेड डैमेज का, वहां पर भी यही हुआ। क्लेम फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट वाज कि भाई जो आपको लिक्विडेटेड डैमेजेस मिली है उसके ऊपर टैक्स आना चाहिए, टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए बिकॉज इट इज अ सर्विस। Bombay High Court in a crystal clear terms hold that it cannot be said to, these liquidated damages cannot be said to be a service at all. It cannot be treated to be a supply of service at all. And the moment it is not a supply of service, no tax. I know a couple of people sitting here are also dealing in some other industries. कई बार अवार्ड रिसीव होते हैं, आज की डेट में बहुत हॉट केक बना हुआ है, इंक्वायरीज चल रही है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कोई डिस्प्यूट हुआ, आफ्टर दैट डिस्प्यूट वेंट इनटू आर्बिट्रेशन एंड अवार्ड हुआ डैमेजेस। प्लीज माइंड, आई एम नॉट सेइंग अवार्ड फॉर अमाउंट फॉर विच सप्लाई हैज ऑलरेडी बीन मेड, नो, नॉट दैट वन, अवार्ड ऑफ डैमेजेस। So in my humble opinion, same analogy apply here and no GST on that. Now the point is, exactly with the same analogy, in my humble opinion, no GST. But please mind,
साथ एआर एक चीज कह रही है, तो उसका मतलब ये है डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज जब केस बनाएंगी तो वो केस उसी डायरेक्शन में बनाएंगे कि लिक्विडेटेड डैमेजेस के ऊपर टैक्स लगना है। डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज इसी तरीके से केस बनाएंगी। एंड जो मैंने आपको सजेस्ट किया कि या मैंने अपना लीगल व्यू बताया कि भाई मेरे हिसाब से इसके ऊपर नहीं लगता, यू विल हैव टू ट्रैवल एटलीस्ट 2 हायरार्की ऑफ द अपीलेट फोरम टू गेट अ ऑर्डर इन योर फेवर। सो यू हैव टू टेक अ कॉल ऑन योर ओन, लुक इनटू योर फाइनेंशियल, लुक इनटू द कि आपका कितना मैटर इन्वॉल्व है। पता लगे एक छोटा सा अगर मान के लिए टोटल केस बन रहा है 50,000 लाख रुपए का ही डिमांड है टोटल, तो फिर क्यों लड़ाई लड़नी है। बट अगर अमाउंट ज्यादा है, टैक्स इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, यू कैन टेक द कॉल और फॉर द पास्ट ट्रांजेक्शंस। थर्ड केस, नाउ द सिचुएशन इज, ये आप देखिएगा मेरे ख्याल से ज्यादातर सब लोगों के साथ आपको मिलेगा, एंड आई वांट टू हैव अ कॉशन फ्लैग हियर। हर डीलर के साथ मिलता है। एक कार मैंने सप्लाई की, लेट अस से मिस्टर सी को, मेरा टैक्स इनवॉइस इंक्लूडिंग ए बी सी बहुत सारे आइटम्स मिला के लेट अस अज्यूम 12,95,000 हुआ, 10 lakh plus RTO plus insurance plus logistics plus something 1295, and I got a amount of rupees 13 lakh rupees. अभी क्या हुआ, वो वापस नहीं लेके गया या मैंने वापस नहीं दिया या वो किसी और चीज के लिए थे, whatever it is, but your ledger is showing this, and now there is a credit balance to this party account, and this account is getting written off. Please mind, in my humble opinion, this is chargeable to tax. काफी लोगों को मुझे पता है जिन्होंने नहीं दिया, I suggest please discharge your taxes. You cannot take a claim कि भाई मेरी तो प्राइस फिक्स थी, मेरे को मेरे OEM ने MRP इतना बताया हुआ था, वो MRP के ऊपर मैंने कर दिया, and this is a transaction value. No, law doesn't say so. Law के अपना तरीका है. Section 15 says whatever amount is paid or payable. Either it is paid or payable for the supply in relation to that supply, it is chargeable to tax. Let us assume गाड़ी 9,95,000 की थी, आपको 10 लाख मिले, मे बी पेबल 995 था लेकिन पे हुए 10 लाख. You cannot take a shelter कि it is a transaction value is of 995. No. And section 15 subsection 2 clause 3 makes it absolutely clear, any amount charged for anything done, it is a part and parcel of the value. So GST has to be discharged. Already couple of cases are already made, so it's a flag for all of you कि अगर अपने पास ऐसा कुछ है मैटर, then please take a appropriate call. So वो 3 पार्ट्स मैंने डिवाइड किया. सर तकरीबन 8 मिनट बचे हैं, so should I take FAQ और कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें और मैं कवर करूँ, as you say. मेरे ख्याल से GST सेशन के लिए तो हम लंच आज आधा घंटा और डिले कर लेंगे. आप प्लीज यू कंटिन्यू. लंच का टाइम है सर, देखो सब लोग मुझे गालियाँ देंगे ना. नहीं आई डोंट थिंक. Should I carry on? मिश्रा जी सर कैरी कर लेते प्लीज विद योर ड्यू परमिशन. Okay. Now let me come to a very very important aspect. And Mishra ji is very generous when he gives his opinion. Very frankly, he gives his opinion unbiasedly, I must say. बट फिर भी एक फ्लैग मेरे को लगाना जरूरी है हमेशा. मुझे जो लगता है कि आपके आने वाले टाइम में आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. मिश्रा साहब ने अभी बताया कि जो RTO चार्जेस हम लेते हैं या लॉजिस्टिक लेते हैं, ये एक्चुअली इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कि जो हमारी सेल है उसके बाद की बात है, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ काइंड ऑफ, एटलीस्ट टैक्सेस आर नॉट काइंड ऑफ लेविएबल टू GST. सर यही कहा था ना आपने. और लॉजिस्टिक जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट, करेक्ट सर? थैंक यू. सो आपका ये कहना था कि लॉजिस्टिक वगैरह के जो चीज़ें हैं इसके ऊपर तो आपको GST जो चुकाना है या देना है वो आपको पूरे अमाउंट के हिसाब से देना है, बट टैक्सेस वगैरह जितने भी हैं और मे बी इंश्योरेंस जो हम क्लेम करते हैं उसके ऊपर GST नहीं लगना चाहिए. दिस इज व्हाट ही टोल्ड. लेट मी कम अप विद माय व्यू, दो आई एम गोइंग टू इको विद मिश्रा जी ऑन दिस व्यू, ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. बट लेट मी टेल यू व्हाट इज देयर इन द प्लेटर. आने वाले टाइम में आपके सामने क्या आने वाला है. पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस. लेट अस से ये आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा था, बहुत पुराना एग्जांपल, यही की स्लाइड मैंने आई थिंक हर बार अपने जब FADA के सेशंस हुए हैं उसमें ये यूज किया और हर बार क्वेश्चन किया है. ध्यान रखिए, इट इज गोइंग टू बी अ बिग इशू फॉर द ऑटो डीलर्स अगर आप अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं. एंड लास्ट वीक वो एक बहुत बड़े फ्लैग की फॉर्म में आ गया. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट
रेजिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। क्वेश्चन ये है कि जो गाड़ी हमारे सामने यहाँ पर है, लेट्स से 10 लाख रुपीज अ व्हीकल, 1,50,000 रुपी आरटीओ चार्जेस, 30,000 रुपीज इंश्योरेंस चार्जेस जो हमने लिए हैं सामने वाले से, मेरे कस्टमर से, और उनके बिहाफ पर मैंने आरटीओ और इंश्योरेंस करा दिया है। तो मुझे 10 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी देना है या वो 1,80,000 आरटीओ इंश्योरेंस के उनको भी क्लब करना है जीएसटी देने के लिए? दिस इज व्हाट द प्रिसाइज क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन दोनों के लिए बात करते हैं, वैट के लिए भी और जीएसटी के लिए भी। व्हाई सो? बिकॉज ऑन 18 अप्रैल 2022 का देयर इज अ रूलिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र किसकी रूलिंग? अंडर द वैट लॉस। आपके सामने है क्या क्वेश्चन था, क्या आंसर था, दोनों चीजें। इन नटशेल आंसर इज दिस वन कि आरटीओ चार्जेस एंड इंश्योरेंस चार्जेस दोनों वैल्यू में इंक्लूडेड होंगे, दोनों वैल्यू में इंक्लूडेड होंगे वैट देने के लिए। यानी कि आपने जो वैट, ये क्या कहना चाह रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग सो, जो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने अभी तक जो वैट डिस्चार्ज किया था पिछले सालों में भी, वो किसी गाड़ी पे अपने एग्जांपल में अगर 10 लाख पर किया था तो दैट वाज रॉन्ग, यू शुड हैव पेड इट ऑन 11,80,000 rupees. This is what this ruling has clarified, and this ruling came in last week only. I think exactly 7 दिन हुए अभी से। थोड़ा सा लीगल बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं। Since this ruling is from Maharashtra, let me put before you both of the laws, MVAT and M Maharashtra VAT Act and Rajasthan VAT Act, RVAT and MVAT। अगर आप देखेंगे तो ये जो डेफिनेशन है, एक वर्ड होता है सेल प्राइस। Why we are discussing सेल प्राइस? क्योंकि जीएसटी, वो वैट में जो टैक्स लगता था, that was on टैक्सेबल टर्नओवर। जैसे हमारे यहाँ जीएसटी में सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज के ऊपर, वैट में टैक्स लगता था टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर वाज डिफाइंड टू बी टर्नओवर माइनस एग्जेम्प्टेड टर्नओवर, एंड टर्नओवर वाज डिफाइंड टू बी सम टोटल ऑफ सेल प्राइसेस। दिस इज अ काइंड ऑफ मैथमेटिकल सीक्वेंस। सो दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस डेफिनेशन सेल प्राइस। अगर आप देखेंगे तो जो अंडरलाइन किया हुआ चीज आपके सामने है, इट क्लियरली सेज, एक पूरा फ्रेज यूज है, सेल प्राइस में क्या क्या इंक्लूड होगा, सम चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द डीलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी देयर ऑफ। ये राजस्थान का है। आप अगर देखेंगे तो सिमिलर आइटम इज देयर इन द महाराष्ट्र वैट, क्योंकि वो रूलिंग महाराष्ट्र की थी, तो इट्स बेटर टू कंपेयर। Let me tell you, similar language is there in the GST as well. Section 15, subsection 2, clause C uses the similar line. Any amount charged for anything done by the dealer. यानी आपने पैसा लिया किसी भी चीज के लिए। अब अगर अपरेंटली मैं बात करूं, डीलर मत बनिएगा, अपरेंटली एक जैसे न्यूज़पेपर रीड करते हैं इस तरीके से, अब अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको लगेगा यहाँ वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए। तो डीलर बनते तो आपको लगेगा उसके ऊपर टैक्स देना इंक्लूड करते, तो प्रोबेबली यू मे नॉट थिंक एट दैट डायरेक्शन। लेकिन जब हम एक अनबायस्ड आदमी बन के पढ़ते हैं इस लैंग्वेज को, तो इसको पढ़ने से ऐसा लगता है प्राइमा फेसाई कि हाँ इंक्लूड होता है। एंड दिस वाज द बेसिस ऑफ द रूलिंग गिवन बाय द महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अलोंग विद द डेफिनेशन यूज्ड इन द मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ द, कि आपके ऑन रोड प्राइस या कार की प्राइस में क्या क्या शामिल होगा, ये भी उन्होंने यूज किया महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग। मैं थोड़ा सा कुछ चीजें ऐसा अप्रेज कर रहा हूं कि क्या चीजें उनसे छूट गई महाराष्ट्र अथॉरिटी ने, जो चीज डिस्कस नहीं कर पाए, वो एप्रिशिएट नहीं कर पाए। सेक्शन 40 इज देयर ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट विच क्लियरली सेज कि रजिस्ट्रेशन इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, और रजिस्ट्रेशन इज टू बी डन बाय द ओनर, बाय द बायर, नॉट बाय द डीलर। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीलर टू गेट द व्हीकल रजिस्टर्ड, it is responsibility of the owner. And rule 47 of the MV rules also makes it clear कि जो रजिस्ट्रेशन होना है, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगनी है, वो जब डिलीवरी हो जाएगी गाड़ी की उसके बाद लगनी है। डिलीवरी होने के बाद, प्लीज माइंड, अब कई लोगों के दिमाग में आता नहीं यार, वो हम लोग को तो उल्टा ध्यान में है, क्योंकि डिलीवरी मतलब जब तक रोड पर गाड़ी आएगी उससे पहले ही ये इंश्योरेंस भी हो जाना चाहिए और ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होना चाहिए। प्लीज माइंड, यहां पर जब लॉ की बात कर रहे हैं डिलीवरी, द कोर्ट्स इंटरप्रेटेड दैट डिलीवरी मतलब आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, यानी आपने सेल इनवॉइस काट दिया, अब उसके बाद रिस्क एंड रिवार्ड आपका नहीं है, सामने वाले का है। तो बेशक वो 2 दिन गाड़ी आपकी खड़ी है, देन ऑल्सो यू आर हैविंग दैट व्हीकल इन अ ट्रस्टी कैपेसिटी, यू हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड दैट व्हीकल। सो मीनिंग देयर बाय, ये जो सर्विसेज अगर आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो व्हीकल से रिलेटेड है, जो कि रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड है, इन दैट केस वो आफ्टर डिलीवरी है। और यहां पर जो
वर्ड अगर आप देखेंगे, चाहे वो एमवेट में, चाहे आरवेट में, चाहे जीएसटी लॉ में, सब में सेम है। वो क्या है? एट द टाइम और बिफोर द डिलीवरी। तो जो हम लॉजिस्टिक चार्जेस वगैरह की बात करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू रिप्रेजेंट द केस बिफोर द अथॉरिटीज। क्योंकि राजस्थान में अगर मैं आपको बात करूं तो स्पेसिफिकली राजस्थान के केस में टैक्स बोर्ड का जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा नहीं, लॉजिस्टिक चार्जेस के ऊपर टैक्स लगना है। आफ्टर दैट डिपार्टमेंट मेड द केस, इनफैक्ट इन द केस ऑफ TNT मोटर्स, ऑल नोज, पब्लिक जजमेंट, we argued it, and even at the first appellate level authority I was at least able to convince the appellate authority and whole of the penalty was quashed। जिनको मैंने बताया कि ये जो बात है कि आपका जो लॉजिस्टिक चार्जेस हम ले रहे हैं वो क्वाइट पॉसिबल कि मैं किस रेफरेंस में ले रहा हूं, मैं किसी चीज से ले रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन मैं करा के दे रहा हूं, इस बात का असिस्टेंस दे रहा हूं मेरे कस्टमर को। सर आई हैव ऑलरेडी टेकन कंसेंट। Maybe I am charging this logistic or handling charges to make the driver acquainted with the features of the car। आज की डेट में इतने कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स हैं कार में, तो मैं उनको समझा रहा हूं, इस बात का मैं चार्ज ले रहा हूं। If it is so, it is post delivery, so it will not be charged to VAT। We have successfully argued this, and a very lovely judgment from the Honorable Bombay High Court। अगर आप यहां पर देखेंगे तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात की जो कि हमें काम में आती है। किसके लिए? जो एक बहुत बड़ा इशू अभी सामने चल रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र एडवांस रूलिंग, जो ये कहता है कि आपके इवन वैट लगेगा जो RTO या इंश्योरेंस चार्जेस लिए उनके लिए भी। गुरिंदर श्रुति प्रकाश, इसमें एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने डिस्कस किया। जैसे इनकम टैक्स में अगर आपने कभी वर्ड सुना हो, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, दैट मींस मेरे पास तो कभी वो आया ही नहीं, वो उसका आने से पहले ही डिस्पोज ऑफ हो गया, दैट मींस इट्स नॉट माय इनकम। एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन अंडर द MVAT लॉ, यहां पर सॉरी पंजाब हाईकोर्ट का मैटर, बॉम्बे हाईकोर्ट वाज ऑन लॉजिस्टिक्स। सो इन दिस पर्टिकुलर केस the High Court of Punjab and Haryana, which was affirmed by the Supreme Court then, they have specifically hold कि अगर आपको कोई पैसा आप किसी से ले रहे हो, अगर आप किसी से कोई पैसा ले रहे हो and this is a obligation of that person, that means your customer, कि आपको जमा कराना है कहीं, then it is not a your consideration। Actually ये मंडी टैक्स का मैटर था, exactly similar to it, कि आपको RTO का रजिस्ट्रेशन किसको कराना है? कस्टमर को। इट्स ऑब्लिगेशन ऑफ द कस्टमर, रेफर सेक्शन 40 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, इट्स नॉट माय ऑब्लिगेशन। सो आई एम जस्ट असिस्टिंग दैट फेलो कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इट नेवर बिकम्स पार्ट ऑफ माय कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में नहीं है तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गोइंग टू सेक्शन 15। सिमिलर इज द केस विद द इंश्योरेंस। सो मीनिंग देयर बाय, इन माय हम्बल ओपिनियन, वैट as well as GST cannot be levied on RTO and insurance charges. This is what the logic. But क्वेश्चन ये आता है जो अभी तक मैंने एनालॉजी और जजमेंट डिस्कस किया वो वैट का था। क्या GST लॉ में कुछ चेंज है? मैं ये कहूंगा GST लॉ में बहुत अच्छा चेंज है। पहले तो हम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स की हेल्प से ये आर्ग्यू कर रहे थे, अभी GST लॉ में इसके लिए रूल बना दिया। GST law says if you are having something, if you are getting some amount in the capacity of a pure agent, in that case that amount will not be included in your valuation. So rule 33 is there which specifically says if you are a pure agent, and now what is a pure agent? In summary I can say these are the 4 things if you comply with, then it will be treated as a pure agent. Fourth is always complied with in case of auto dealer. Let's have another 3 items. प्लीज एंश्योर अगर ये चीज आपके पास हो रही है देन यू आर सेफ। जो मैंने आपको कहा था कि लगेगा तो नहीं, बट इट्स बेटर कि अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रहे। डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो GST लॉ खुद कहेगा कि आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज देयर विल बी अ प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर विल बी अ लॉन्ग लिटिगेशन। सो इफ यू वांट टू अवॉइड लिटिगेशन, मेक श्योर इन योर डीलरशिप these conditions are fulfilled as far as documents are concerned. Number 1, you are charging exactly the same amount. For example, if for the registration purposes 1,45,800 is the RTO charges, then you should charge 1,45,800 only, not 1,50,000 in round figure. So exact amount is to be charged.
I believe most of the time this is being followed, because whenever you are debiting in the ledger that particular fellow, you debit with that amount only. But make sure never this practice has to be followed. If you are getting something additionally, make a separate bill for this. Second, amount separately mentioned in the invoice. Normally this has not been followed. Please make sure it gets followed. At times what happen, आपका DMS permit नहीं करता कि भाई वो RTO इंश्योरेंस वगैरह उसमें इंक्लूड करें, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी, कई जगह परमिट करता है, कई जगह नहीं करता. इफ इट इज सो, then please raise a supplementary invoice or a debit note without taxes marking reference of a rule 33 कि हम प्योर एजेंट की कैपेसिटी में ले रहे हैं ये चीज. थर्ड पॉइंट, ऑथराइजेशन टू इनकर सच एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कस्टमर. जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ऑथराइजेशन मुझे कम जगह पर मिला है. मेक श्योर कि जब आप कार की बुकिंग ले रहे हैं उसी टाइम एक ऑथराइजेशन ले लें. मे बी आपके बुकिंग फॉर्म होता है, बुकिंग फॉर्म में डाल सकते हैं कि ये वाली चीज, ये हम आपके बिहाफ पर ये पैसा ले रहे हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, दिस इज फॉर द पर्पसेस ऑफ आरटीओ और इंश्योरेंस. सिमिलरली जो मैंने आपको ये गुरिंता वाला जजमेंट बताया था फ्रॉम द पंजाब हाई कोर्ट विच कंफर्म फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, सिमिलर सिचुएशन इज देयर इन केस ऑफ लॉजिस्टिक चार्जेस जो मैंने आपको कहा, जिसमें उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन के रेफरेंस में ले रहे हैं. तो सहगल ऑटो राइडर्स के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट गिवन द सिमिलर काइंड ऑफ रूलिंग कि नो वैट ऑन लॉजिस्टिक चार्जेस एज सच. And this judgment also got confirmed from the Honorable Supreme Court on 5th of November 2012. वहाँ पर ये भी सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म हो चुका है. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि वापस से इस लॉजिस्टिक चार्जेस को लेके जीएसटी में कुछ डिफरेंस है क्या? आरटीओ इंश्योरेंस सेम, चाहे वो वैट था चाहे जीएसटी था. इन माय हम्बल ओपिनियन इट कैनॉट बी कवर्ड, बट यू विल हैव टू डॉक्यूमेंट इट प्रॉपरली. कमिंग टू लॉजिस्टिक चार्जेस, इन माय हम्बल ओपिनियन देयर इज अ बिग चेंज. चेंज इज now there is a concept of composite supply which was not there under the VAT laws. What is a composite supply? If you are supplying two or more supplies together and one of them is a principal, another is an ancillary, यानी एक main है और दूसरा कुछ उसके लिए ancillary है. In that case it is to be treated as a composite supply. In case of composite supply, whole of the supply is to be taxed at the rate which is applicable on the principal item. So in my humble opinion, whatever the logistic charges are there, tax should be paid at the full rate that applies to the respective vehicle, including cess. So you can note it down, though there are, I understand कि issues हैं इसको लेके. अगर कुछ केसेस बनते हैं तो there can be the other way out, लेकिन वो जब केस बनेंगे तब की तब बात करेंगे उसको कैसे बाहर निकलना. But I think this approach should be followed across the industry. I'll take the one last point, otherwise आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा फिर टाइम. एक आईटीसी और शोरूम आपका स्पेसिफिकली क्वेरी भेजा हुआ था कि हम जब कई बार आईटी जो शोरूम वगैरह रिनोवेट कराते हैं, नया शोरूम बना रहे हैं, पुराने वाले में कुछ रिपेयर करा रहे हैं, सो उस केस में क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? दैट्स अ वेरी कॉमन क्वेरी. जो भी अभी आई थिंक मेरे से पहले वाले स्पीकर थे कार देखो से, ही वाज लाइक नई डीलरशिप लीजिए, नई डीलेंगे तो नया शोरूम भी होने वाला है, एक्सपांशन होने वाला है, पुराने का रिपेयर होने वाला है, वो सब काम होने वाला है. तो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने एक आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल रखा है विच इज अ वेरी वेरी रियल एग्जाम्पल. एक डीलर ने अपने ऑलरेडी देयर इज अ शोरूम, उसको रिनोवेट करना है, और उस रिनोवेशन के लिए ऐसा कुछ डील किया कि एक कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, उन्होंने बताया कि ये सारे काम लिखे जो होने थे, आपकी स्लाइड पर है. दिस इज अगेन अ रियलिस्टिक एग्जाम्पल. 1,50 लाख रुपीज टोटल कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि आपको ये चार्ज लगेगा. The dealer was ready and was going ahead with this kind of contract. ऐसा ही होता है सर नॉर्मली कि वे बुलाया, एस्टिमेट लिया, इतने में काम होगा, पूरा काम लमसम दे दिया. वेरी गुड. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग तो है, लेकिन अगर पैसे बचाना है तो थोड़ा सा कुछ काम और भी करना पड़ेगा. अभी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है तो मेक श्योर, माय सिंपल एडवाइस इज यू विल हैव टू पे 18%. आराम से दो, चैप्टर एंड्स, कोई इशू नहीं. Because there is a specific provision. First of all, let me get the legal provisions back. Section 16 says if you are paying GST on goods or services for the purposes of business, credit allowed. Correct ना? ये याद है सबको. Then there is अगर something is falling in negative list, then no credit. If something is not falling in that negative list, credit जो आपको मिल गया वो मिल गया. But problem is
ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायरली फॉल्स इन सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी विच सेज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप दे रहे हैं तो आपको नो क्रेडिट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अदर देन प्लांट एंड मशीनरी के लिए है और आप खुद वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करें, विच इज नॉट द केस। इन दैट केस नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या इसको कुछ थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। ये लीगल प्रोविजंस स्क्रीन पर वापस से आपके सामने। मैं समय के अभाव के कारण आपको समराइज कर देता हूं कि क्या इसकी समरी क्या है पूरे मैटर की, कि कैसे कैसे होना है। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, इफ यू कैन बाइफरकेट दिस कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कैसे होगा? जो आपका रिनोवेशन एक्सपेंडिचर है, प्लीज माइंड माय वर्ड रिनोवेशन, in that case if this is capitalized mean precisely you are taking it to the balance sheet, everyone knows it. If you are capitalizing it and capitalization or for movable property, for example AC purchased, split AC, window AC, some furniture, sofa, maybe all you will agree with me कि most of the time आज की डेट में क्या बोलते हैं सर, जो फर्नीचर बनता है that's a मॉड्यूलर फर्नीचर। थैंक यू, वो वर्ड नहीं आ रहा था मैंने। मॉड्यूलर फर्नीचर है तो क्या है वो? दैट्स एब्सोल्युटली मूवेबल। यहां से पेज स्क्रू खोला और उठा के वहां ले गए। ऑल दीज आर मूवेबल फर्नीचर, इवन इफ इट इज कैपिटलाइज्ड, क्रेडिट इज एब्सोल्युटली एलिजिबल, नो डाउट अबाउट इट। नाउ द क्वेश्चन इज इफ इट इज नॉट मूवेबल, दैट मीन्स इट्स अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन दैट केस अगेन यू सी इफ इट इज फॉर द पर्पज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वेदर द अल्टीमेटली जो आपकी प्रॉपर्टी बन रही है इज इट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ प्लांट एंड मशीनरी। व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी इन योर केस? जो आपके इक्विपमेंट सर्विसिंग के टाइम पर लगते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। सो ऑल दोज आर प्लांट एंड मशीनरीज, क्रेडिट अगेन एलिजिबल, क्रेडिट अगेन एलिजिबल। बट अगर समथिंग इज कैपिटलाइज्ड नॉट इन द नेचर ऑफ मूवेबल and being immovable not in plant and machinery, then credit is not eligible. सर फोटो से पहले एक और टैब दबने वाला है, सो फोटो 1 मिनट के बाद। अभी वो नहीं आया ना कि कैपिटलाइज नहीं किया तो क्या होना, दैट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो अगर आपने कुछ कैपिटलाइज नहीं किया है, देन इन दैट केस इट इज आईटीसी इज एलिजिबल, वेरी वेल एलिजिबल। अब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को देखिए कितने टुकड़े कर सकते हैं और कैसे विद इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट आप उसको बाइफरकेट कर सकते हैं, विद इन द सेम कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग विद द सेम कॉन्ट्रैक्टर। आई कैन टेल यू, यू कैन सेव, जो मैंने करके दिया था किसी को प्लान, सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन सेव 2/3 ऑफ योर टैक्सेस ऑन इट, लीगली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल इथिकल तरीके से, कोई दाएं बाएं की बात नहीं। सो दिस इज व्हाट आर सम एंड सब्सटेंस ऑफ व्हाट आई डिस्कस्ड। सेस ऑन एसयूवी एवरीवन नोज नाउ, बहुत सारे समन आ चुके हैं, जिनके पास नहीं आए हैं आ जाएंगे। कुछ इशू है जो रेट ऑफ टैक्स 20-22%। इन माय हम्बल ओपिनियन डीलर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। जिनके इशू पता है और सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, इन माय हम्बल ओपिनियन डीलर्स आर करेक्ट। जो सेस चार्ज किया है वो ठीक चार्ज किया है। डिपार्टमेंट एज ऑफ नाउ इज नॉट गेटिंग एग्रीड टू इट। दे वांट कि सेस टू बी चार्ज ऑन 22% जस्ट बिकॉज ऑफ द नेम विच इज गिवन ऑन द एडवर्टाइजमेंट। आई होप यू आर फॉलोइंग मी, जिनके पास एटलीस्ट नोटिस आ चुके हैं। Issue is कि particular vehicle is to be called as SUV or not, and the cases are being made on the basis of what is advertisement or what is brochure against the legal principles. With this, I conclude my session. Thank you very much for giving me this opportunity. Always pleasure speaking at FADA platform. Thank you very much. थैंक यू जतिन जी। मेरे ख्याल से आपने 90% तो जो हमारी क्वेरीज हैं वो आपने अपने प्रेजेंटेशन में ही हमारे रिजॉल्व कर दिए, बट देयर स्टिल फ्यू क्वेरीज विच आर स्टिल लेफ्ट। आई जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट। आई रिक्वेस्ट अरविंद जी और सतीश उपाध्याय जी और जतिन जी, एनीवन कैन टेक अप दिस। तो फर्स्ट आई रिक्वेस्ट अरविंद जी, सर ये आपसे, आपके डिपार्टमेंट से क्या मतलब, ये आपसे ही रिलेटेड है। एक विजिट ऑफ इंस्पेक्टर्स, ये जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ सर, ये हमने डीलर्स से मंगाए थे इस सेशन से पहले, तो उसी वजह से ये क्वेश्चंस आए हैं। So it says that visit of inspectors without any authorization or official document to our premises. So what's your view on that, sir? As I told you, GST is a self-assessment based taxation, जहाँ
डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं करना है, एक लिमिट के बाद ही डिपार्टमेंट करता है। खुद आप लोग टैक्स कलेक्ट करते हैं, खुद असेस करते हैं, खुद जमा कराते हैं। इसी थीम पे कोई भी आदमी आपके बिजनेस प्राइमेज में नहीं आ सकता। 2 कंडीशंस हैं जिनमें आपके यहाँ कोई विजिट की जा सकती है। पहला इन्वेस्टिगेशन है, उसके लिए हर जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑथराइज्ड है, उनके बिना ऑथराइजेशन के कोई नहीं आ सकता। दूसरा है आपके ऑडिट एंड स्क्रूटनी, अगेन फॉर दैट ए प्रॉपर ऑथराइजेशन इज प्रेस्क्राइब्ड। वो भी डिप्टी कमिश्नर से छोटे लेवल के कोई भी लोग उसको ऑथराइजेशन नहीं दे सकते। तो डीलर टू डिपार्टमेंटल जो इन पर्सन इंटरेक्शन है वो जीएसटी में कम से कम है, ऑलमोस्ट नील है। आप अपने पोर्टल पे काम करते हैं, डिपार्टमेंट उस पोर्टल को उस साइड से देख लेता है। तो आई डोंट थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके आएगी। सर, एक इससे मिलता जुलता एक और सवाल है कि अभी हमने ऑफ लेट वी आर रियलाइजिंग कि हमारे पास में मल्टीपल क्वेरीज आ रही हैं सर, सेम पीरियड के टैक्स के लिए समन्स आ रहे हैं, सिक्योरिटी नोटिसेस आ रहे हैं, ऑडिट्स के नोटिसेस आ रहे हैं, इंस्पेक्शन के नोटिसेस आ रहे हैं, और उसमें होता है कि आपको विद 30 डेज रिप्लाई करिए, विद इन 15 डेज रिप्लाई करिए, और वो मल्टीपल टाइम्स आता है। जैसे अगर आपने आज एक आपके पास नोटिस आया उसमें कि आपके देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन योर जीएसटी रिटर्न्स, और 6 महीने आपने रिप्लाई कर दिए, 6 महीने के बाद दोबारा वही सेम नोटिस किसी और शेप के अंदर आ जाता है। तो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू इन दोस केसेस? यस, वैसे डिपार्टमेंट जो है उसमें आपका जो हम नोटिस देते हैं उसका रिकॉर्ड है। ऐसा रूटीन में आता नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। अगेन फिर भी ऐसा कोई इंसिडेंट है तो यू ब्रिंग इन आवर नॉलेज। तो अगर डिफरेंट इंक्वायरीज ऐसी कुछ चल रही है तो हम उनको क्लब करके एक करा देंगे, ताकि आपको बार बार ना रेस्पॉन्स करना पड़े, ना आपका टाइम वेस्ट हो। साई जी, थोड़ा सा इसमें ऐड कर देता हूँ। आई कम्प्लीटली एंडोर्स द व्हाट मिश्रा साहब सेड कि लीगल पोजीशन यही है। थोड़ा समराइज करने के लिए, पहली बात तो देयर आर स्टेट विंग, देयर आर सेंट्रल विंग। अगर एक विंग ने काम स्टार्ट कर दिया तो दूसरी विंग नहीं आ सकती, नंबर 1। रेलेवेंट डायरेक्ट लीगल प्रोविजन इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी। दूसरी बात, इवन विद इन, क्योंकि आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो उसी से रिलेटेड था, क्योंकि मिश्रा साहब ने बहुत अच्छे से जवाब दिया कि लॉ ये है, अगर कोई आ रहा है तो वो गलत हो रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली मेरे सामने है, मैं उसका लीगल रिकोर्स भी बता रहा हूँ। 1 जो लीगल प्रोविजन। सेकंड, इवन विद इन द सेम स्ट्रीम, जैसे आपने कहा कि स्क्रूटनी का भी नोटिस आ गया, उसके बाद कोई दूसरी इंक्वायरी भी हो गई, किसी दूसरे स्ट्रीम के ऑफिसर ने कर ली विद इन द स्टेट और सेंटर। तो देयर इज अ ब्यूटीफुल जजमेंट विच केम लास्ट ईयर फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साइड, इज द कैनन इंडिया। इसने जो असेस किया कोई और उसको हाथ नहीं लगा सकता, अगर इसको रीअसेस करना है तो उसी को करना है। So that's a beautiful piece of legislation which came from the Supreme Court side, explaining how the jurisdiction is to be exercised. Can India Limited from Supreme Court. सर, एक और हमारा बर्निंग इशू है रिगार्डिंग डेमो व्हीकल्स। डेमो व्हीकल्स हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। 1 डेमो व्हीकल्स विच आर रजिस्टर्ड, सेकंड डेमो व्हीकल्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड, विच आर रन ऑन ट्रेड सर्टिफिकेट प्लेट्स। जो गाड़ियाँ हम रजिस्टर करते हैं उसके अंदर में क्योंकि वो गाड़ियाँ कैपिटलाइज होती हैं, we get benefit of depreciation on that and we get GST input also। और जब उन गाड़ियों को हम बेचते हैं तो GST input उसका रिवर्स हो जाता है गाड़ियों का at the cost of that vehicle। तो इसके अंदर में as you rightly said एडवांस रूलिंग्स आई हुई हैं गोवा की और कर्नाटका की, which are probably adverse in the sense that they say that on these vehicles you are not supposed to take any input credit, whereas these vehicles are purely and purely used for furtherances of our businesses. So what is the view of the department? Yes sir, you can take it, or Jatin ji you can take it. Yeah. I thought you asked the view of the department. See, in my humble opinion, input tax credit will always be available on demo car, whether you capitalize it or doesn't capitalize it hardly matters, because law doesn't differentiate it. कोई डिफरेंस करने का तरीका ही नहीं है। एडवांस रूलिंग डेफिनेटली कुछ कॉन्ट्ररी आ गई हैं जो लॉ नहीं है, जो मैं इनिशियली आपको बता चुका हूँ। आई वोंट डील विद इट। व्हाई आई एम सेइंग सो कि क्रेडिट एलिजिबल है। सी, डेमो कार है क्या अल्टीमेटली, उसका पर्पस क्या है? आप आज एक कंप्यूटर परचेज करने जाते हैं किसी दुकान में, यू विल ऑलवेज यार मैं एक बार चला के देख तो लूँ। आप टीवी स्टूडियो में, मे भी किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाते हैं, आप कहते हैं ना भाई एक बार चला के तो देख लें।
तो चला के देख रहे हैं तो व्हाट इज क्या है कि मैं जो यूजर है वो देख रहा है कि ये चीज़ तो ठीक है, इसके ऊपर पिक्सल जितने कहते हैं अच्छी स्क्रीन दिखाई देती है नहीं दिखाई देती, दिस इज व्हाट ना, तो यूजर एक्सपीरियंस देना बेसिकली उस चीज़ का। अब हमारे यहाँ पिक्यूलर फीचर का हमारी इंडस्ट्री का कुछ ऐसा है कि अगर मैं वो यूजर एक्सपीरियंस तो एक्चुअल कार पे उसको देने लग गया, देन व्हाट कैन हैपन, वो कार डैमेज हो जाएगी, कुछ क्वाइट पॉसिबल कि उसको रोड पर ले जाए, कुछ स्क्रैच लगना नहीं का, अब उसको दूसरा कोई लेने वाला नहीं। तो इसके लिए ऐसा कर लिया कि भाई मैं हर गाड़ी से डेमो दूं कि भाई जो आने वाला है उसको भाई तू ले जा, उसकी जगह एक आइडेंटिफाइड कर दी, एंड अल्टीमेटली व्हाट गोना हैपन लेटर और सूनर आई विल सेल दिस कार एज वेल। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, अपने घर में रखने के लिए थोड़ी ली है वो गाड़ी। अभी मैं उसको सिर्फ ये है कि दूसरी गाड़ी का वेटिंग पीरियड 2 महीने हो सकता है, मेरे पास स्टॉक रहे 1.5-2 महीने, जो डेमो कार है वो मेरे पास 1.5 साल रह जाएगा। लॉ इस चीज को कोई डिफरेंशिएट नहीं करता, एंड 100% क्रेडिट इज एलिजिबल बिकॉज यू बॉट दिस कार टू सेल। और मैं आपको बहुत कैटेगरिकली बोल रहा हूं कि अगर कोई नोटिस ऐसा आता है, कोई केस बनता है, तो प्लीज मेक श्योर यू राइट इन दैट डायरेक्शन ओनली, गलत डायरेक्शन में मत चले जाइए, क्योंकि आपने वो अल्टीमेटली सेल ही करनी है। आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ डेमो नहीं है, वो डेमो इनबिल्ट पर्पस है सभी के लिए, सिर्फ एक की बात नहीं है। सो इसलिए क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। Now let me come to the view of the department as well, क्योंकि सर वो लास्ट प्रोग्राम रेडिसन में था ना FAD का, if I'm not wrong, जयपुर में ही सेम प्रोग्राम इसी तरीके से हुआ था। दैट देन CCT श्री आलोक गुप्ता जी वाज देयर, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिनेश रखेजा जी वाज आल्सो देयर। ये चीज जब मैंने एक्सप्लेन की थी, ही कंसेंटेड टू हिम, आपके पास वीडियो होगा वो निकाल के देख लीजिएगा। सो डिपार्टमेंट व्यू उस टाइम पे वही था, आज चेंज हो गया तो आई कांट से, मेरा व्यू तब भी वही था, आज भी यही। मेरा एक जनरल रिक्वेस्ट आपसे, देखिए मेरा व्यू का जो लीगल वैलिडिटी है वो कुछ भी नहीं है, सेकंड। फिर उसके बाद में एक अथॉरिटी है AAR, जिनका चूँकि डिफरेंट इश्यूज़ पे बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, डेफिनेटली क्यों आई एम विद इंडस्ट्री, तो अब मुझे भी लगता है कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली उसका सोल्यूशन होना चाहिए। तो उसका एक तरीका अपन ये करें कि हम इन इशू को नोट डाउन करके और हम इन इशू को काउंसिल के थ्रू एक सर्कुलर करें। तो जैसे हरजाई जी ने कहा सर्कुलर इज़ नॉट ए लॉ, यस आई डू एग्री, बट सर्कुलर आर डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर सर्कुलर हम निकलवा पाते हैं तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी पे बाइंडिंग है, हमें वैसा ही काम करना पड़ता है। तो हम इन क्वेश्चंस का जवाब मैं ज़्यादा चाहूँगा कि आप कुछ इशू मेरे पास हैं, हम इनका एक्सप्लोर करते हैं, आपके भी कुछ इशू हैं, आप हमें और कम्युनिकेट कर दें, हम बैठते हैं उनमें उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं कि किन किन इशू को लेकर हमें काउंसिल में रिप्रेजेंट देना चाहिए। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि राजस्थान पार्ट है बोथ फिटमेंट का और लॉ कमेटी का भी, सर्कुलर अल्टीमेटली वहीं से ड्राफ्ट होके जाते हैं काउंसिल में, तो हम आपकी बात वहाँ भी प्लीड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा देखो कि आप इस तरह के ओपिनियन लेने के बजाय डूबियस जो इश्यूज हैं उन पे हम इनके इशू को सेटल करने के मेथोडोलॉजी पे काम करें। थैंक यू। I couldn't understand your question. Okay. See, आपने जो बोला that is written in section 17 subsection 5 clause A कि क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा if it is in relation to motor vehicle, ठीक है सर? उसके बाद उसका exclusion है. Then there is an exclusion to 17(5)(a) which says if this vehicle is for further supply then credit is eligible. यानी negative list in a negative list. So negative becomes positive. Thanks a lot first. Now I'll be taking the final question. This actually is a major. यानी मैं एक सेकंड और ले लूँ। यानी कि मैं अगर कार परचेज करता हूँ अपने ऑफिस के लिए, नो क्रेडिट। आप कार परचेज कर रहे हैं सेल के लिए, देन क्रेडिट मिलेगा। इसमें थोड़ा सा क्लैरिफाई और कर देता हूँ। पता लगे निकुंज जी डील तो करते हैं महिंद्रा में और इन्होंने अपने लिए मर्क ले लिया और फिर कहे नहीं इट्स अ डेमो कार। सर ये नहीं चलेगा, है ना? ये नहीं चलेगा, इट्स योर ओन कार जस्ट लाइक मी, तो आपको वो क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर एक ये मेजर इशू है हमारा डिस्काउंट ऑन सेल बाय द डीलर्स पे। एज ऑन डे होता ये है कि डीलर्स आर प्रिवेलिंग पोस्ट सेल डिस्काउंट्स, डीलर्स आर प्रोवाइडिंग पोस्ट सेल डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स टू प्रमोट सेल्स।
Actually, such a discount is pre-decided but not passed on through the sales invoice. According to the deal, dealer issues a credit note separately and reverses the GST output charged in the sales invoice, issued either to B2B or B2C customers. In some cases, the dealer also issues credit notes on monthly, quarterly or yearly basis as per the scheme announced by dealers for the achievement of targets. Under the GST regime, the credit note can be issued under the below conditions. The supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value of goods or services provided. Supplier has erroneously declared a higher tax rate than what is applicable for the kind of goods or services or both supplied. The quantity received by the recipient is less than what has been declared in the tax invoice. The quality of the good or the services or both supplied is not to the satisfaction of the recipient, thereby necessitating a partial or total reimbursement of the invoice value. So I'll request you to please suggest whether the credit notes issued by us is correct or not under the GST regime. अच्छा सॉरी अगेन आई थॉट कि इट इज क्वेश्चन टू मिश्रा जी. इसका मुझसे बहुत अच्छा आंसर तो वेंकटेश जी दे सकते हैं. इन्होंने बहुत मेहनत की थी इसके ऊपर. लेट मी टेल यू देयर वाज अ सर्कुलर इशूड बाय द CBIC सीरियल नंबर 105 और वो बहुत ही ऐसे टाइम पर आया था जब सब लोग क्लोजिंग कर रहे थे, विच सेज कि ये सारी चीज़ें जो आपने बोली हैं इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है. हाँ, जबकि आपको टैक्स ले रहे हैं वो नहीं मिलेगा पूरी वैल्यू के ऊपर. तो मीनिंग देयर बाय 10 लाख का आपने कार सेल किया, 50,000 का क्रेडिट नोट दे दिया, टैक्स हैज टू पेड ऑन टैक्स ले 10 लाख, ये बोला था. पूरी फाडा टीम ने, सॉरी FADA टीम ने बहुत ही मेहनत करी उसके ऊपर और बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट को, मेड देम अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट अ करेक्ट लॉ, एंड फाइनली CBIC withdrew that circular. And let me tell you, the law is crystal clear. If the discount is crystallized before the sale, in that case, yes, tax will be charged on 950 only. That means after reduction, no tax is to be paid on the whole value. तो आपने जो जितने भी डीलर जो कुछ कर रहे हैं इस मामले में, I can say with my experience, 99.99% डीलर सब इस चीज़ को ठीक तरीके से हैंडल कर रहे हैं. This is what my opinion. Thanks a lot, sir. We summarize this session, and I'm really grateful to Arvind Mishra ji and Satish Upadhyay ji, even to the Commissioner Saab, though he had to leave early, for being so transparent, so upfront in helping us come up through these answers. And as Arvind Mishra ji has suggested, that this is not the end. He's already told me, he's told in the open forum also, कि हमारे जो भी questions हैं which are unanswered, we can always go to the department, and in case there is no immediate reply, then we can look for a advance ruling for the same. Am I correct, sir? Yeah. So thanks a lot, sir. Thank you for joining us for this session. It was really great, and I'm sorry we had to extend this beyond a certain time. आई थिंक ये आपका जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, इसके काफ़ी नोटिसेज वगैरह डीलर्स को इशू हो रखे हैं. तो आई वुड लाइक टू जस्ट रेफर वन केस लॉ which is from the Supreme Court of the Auto Dealers itself. Southern Motors is a judgment January 27 का, that explains this concept beautifully कि इसके ऊपर क्यों टैक्स नहीं लगेगा. तो that can be very helpful for all the dealers. Southern Motors, so from the Supreme Court, it was originated from the Bombay High Court, January 2017, if I'm not wrong, 98 VST. Thank you. This has to be closed at the time of the deal, or we can do it in the quarter? At that time or before you are selling the vehicle, your terms has to be crystallized. आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो बाद में कभी भी दो, हार्डली मैटर्स. आई विल एडवाइस कि वो डिस्काउंट 6 महीने से ज़्यादा आगे नहीं जाए. मैं बड़ा लेमन टर्म्स में आपको बोल रहा हूँ, और ओबियसली आपकी इंडस्ट्री में कभी ऐसा होगा नहीं. मैं आपसे कार खरीदने आ रहा हूँ तो मैं आपको अगर डिस्काउंट की कोई बात है तो 1 हफ्ते से ज़्यादा छोड़ूंगा नहीं. In case of credit note only, there are certain time limits. Actually, it is next year के सितंबर होता था, जो कि इस बजट में चेंज होके नवंबर हो गया है. So I will advise कि 6 महीने के अंदर कर लो यार, इससे ज़्यादा क्या होगा. Otherwise, some other way without also. Vyapar Rajasthan is turning out to be very, very fruitful and useful, and very complicated issues on GST have been addressed so very well. Thank you so much all the speakers here. And one thing I want to say is, जिम्मेदारी संग नारी भर रही है उड़ान, न कोई शिकायत न कोई ठिकान. The only sole table here, which is here with our empowered women, beautiful ladies, can we hear it for them?
They were all in the session, very active, and I'm really, really proud of all of them. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी श्री सौरभ अग्रवाल जी से कि वे मंच पर आएं और हमारे स्पीकर श्री अरविंद मिश्रा जी को फेलिसिटेट करें. कैन वी हैव मिस्टर सौरभ अग्रवाल? I request Mr. Vinkesh Gulati ji to please come up and felicitate Shri Jatin Harjai, partner and leader, JHA Legal, who summed up it so very well. A big round of applause for him. तालियां थोड़ी कम है, थोड़ा और जोश मिलना चाहिए. Thank you so much. व्यापार की जब बात होती है तो हम ये जानते हैं. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू कम फॉरवर्ड फॉर द फोटो ऑप प्लीज. व्यापार की जब बात होती है तो हम सभी जानते हैं कि फिनेंस व्यापार के लिए कितना कितना इम्पॉर्टेंट है, और फिनेंस के साथ साथ हमारे जो एसेट्स हैं वो सेफ रहें उसके लिए इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस जो हम लंच के बाद यहाँ पे लेंगे.